नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर स्पीक में। अगले 1 घंटे में हम कोविड-19 से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपके देंगे और जो भी आपके मन में शंका है, जो भी आपके मन में प्रश्न है, इससे संबंधित आप डॉक्टर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ जो स्क्रीन पर हम फ़ोन नंबर्स दिखा रहे हैं उन फ़ोन नंबर्स पर कॉल करना है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया से भी हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक लाइव से हमसे जुड़ सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ हम नए विषय लेकर आते हैं इसमें, तो आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वो है फेफड़ों और श्वसन संबंधी देखभाल। क्योंकि जिस तरह से सर्दियां आ रही हैं और जिस तरह से प्रदूषण से सांस संबंधी बीमारियां जो है उनके होने का खतरा ज़्यादा होता है, इसके अलावा फेफड़ों की विशेष देखभाल ज़रूरी होती है, विशेषकर कोरोना काल में। तो इन सब से जुड़े आपके अगर कोई भी सवाल है आप हमें पूछ सकते हैं। और इस 1 घंटे में डॉक्टर के पैनल के साथ अंग्रेजी में मेरे साथ रहेंगे मेरे सहयोगी मार्कलिन। Thanks very much, Rama. Yes, as Rama was saying, our focus today is going to be on lungs and pulmonary medicine, because at the end of the day, you know, we are changing seasons. We're coming into this possibility in some parts of North India where there's pollution. All these things can affect your lungs, and added to the COVID fear, which is basically when it first started was largely a respiratory infection. All this leads to some sort of concern. So we'll try and discuss those with our panel of experts, top doctors today. And we have with us, in fact, Dr. G.C. Khilnani, former HOD Pulmonary Medicine of AIIMS, joining us, and Dr. Anupam Prakash, Department of Medicine, Lady Hardinge Medical College, also with us. Dr. Khilnani, we'll start with you. You know, the biggest concern is that there's going to be pollution levels going up. That will happen automatically because, you know, unlock is taking place, cars are on the roads, construction has started. There's probably, you know, stubble burning taking place. All these are going to have an impact. And then there is also the fear of COVID continuing to rise. How does one deal with this situation, you know, from keeping your lungs safe? So you have all said it absolutely right. You know, the AQI is already touching 200. We are much little away from Dussehra and Diwali. And there's the international scientific community has produced evidence that, you know, if there is with the higher pollution, there is higher mortality with COVID, which has come back from Italy, 12 versus 4.5% mortality. It has come from Harvard group from United States with rise in 2.5 PM 2.5 of 1 milligram per meter cube, leading to 8.3% rise in mortality. And similarly, NO2 level with mortality from Germany. So we are scared. You know, what is going to happen in this festive season? There is going to be a rise in air pollution, which has already started going up. That is one. Then there is going to be social meetings. There is going to be congregation. There is going to be festival and feast go on together traditionally. So, and then the dip in temperature, and confounded by increase in the other respiratory infections and other fevers like dengue fever and other viral fevers have already come up. So I don't want to give a very depressing picture, but we ought to know. We ought to know that we are in for a little difficult time because of this COVID, which actually primarily causes respiratory inflammation that is called pneumonia. So we need to be extra cautious. Okay. And on one time, we need to celebrate festivals with our family members and friends, but at the same time, we need to be following the social distancing. That's a little difficult, but what I like to emphasize is use of mask and your hand hygiene. And use of mask is going to be of paramount importance. So let me interrupt here, Dr. Khilnani. Yeah, Use of mask, because, you know, we've been using simple masks, but should we now be using the pollution masks, the masks that, you know, used to protect us from pollution, kind of thicker masks in a sense? Yeah. You know, the masks are actually basically of several types. One is N95 mask, which we are using for medical purposes while doing procedure. One is, you know, you can call it corona mask, which we have publicized that, you know, you can use a simple cotton mask, maybe with the 2-layer. And third is the surgical mask, that is 2-layer mask. So if you want to go for want to be protected from the air pollution,
bad air pollution that we get in Diwali, and you insist on going on a morning walk, then there's a question of using N95 mask. Otherwise, a simple cloth mask or a 3-layer surgical Right. mask is good enough these days. And whosoever has used N95 mask would realize that breathing becomes difficult, exhalation, breathing out becomes difficult. After some time, you might have a mild headache and soreness in the throat. So it's not very easy to use N95 mask. And I don't think I would advise it for everybody to use N95 Okay. mask. Use the mask which you have. It can be a cloth mask, but important thing is that you should wear it properly from your nose to the chin. Right, Tie right. it properly. There should पूरी be no तरह leak In from the fact, side. let's bring in Dr. Anupam Prakash. There's already a question, Dr. Prakash. It says that, you know, I have recovered from COVID, but I still have sore throats. So how do I go ahead? नमस्कार, बहुत अच्छे सवाल हैं। ये डॉक्टर खिलनानी ने भी बहुत अच्छे से बताया। देखिए, ऐसा है, आज की तारीख में मौसम बदलने की वजह से काफी सारे ये थोड़ा सा तो एलर्जिक फिनोमेना जो होते हैं वो भी आ गए हैं, और जो कोरोना के अलावा जो है, मतलब कोविड बीमारी करने वाले जो वायरस हैं, उनके अलावा भी जो वायरसेस हैं, जैसे कि डॉक्टर खिलनानी भी कह रहे थे, तो नजला जुकाम वायरस भी, नॉन कोविड वाले जो कोरोना वायरस हैं, बाकी जो एडिनो राइनो वायरसेस हैं, उनकी वजह से जो होने वाले नजला जुकाम है, ये भी चल रहे हैं। अगर कोविड से ठीक हो गए हैं और फिर भी गला खराब चल रहा है, तो अगर वो ठीक ही नहीं हुआ है तो कोविड की वजह से भी हो सकता है। आजकल देखा जा रहा है कोविड के मरीज ठीक होने के बाद भी उन्हें दिक्कतें रहती हैं। तो नमक के गुनगुने पानी से गरारा करें और जो है गर्म पानी की भाप लें दिन में 3 बार, तो उससे काफी राहत मिल जाएगी। फिर भी अगर रहता है, दिक्कत अगर चल रही है, तो फिर एक बार जो है नाक कान गले के विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं, मेरा मानना है। बिल्कुल। डॉक्टर अनुपम, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से रिपोर्ट्स आई हैं और उनसे ये पता लगता है कि कोविड की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो श्वसन तंत्र है या फेफड़े हैं, और बात तक भी ये होते रहते हैं, इस तरह की बात कही जा रही है, इसकी पुष्टि आप करेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से अब सर्दी भी आ रही है, मौसम बदल रहा है, इसमें प्रदूषण है वो इसको वर्स्टली अफेक्ट कर सकता है। तो क्या कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिनसे कि पता लगता है कि अब ये शुरू हो गया है, और किस तरह से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए, मैं डॉक्टर खिलनानी की बात से काफी हद तक सहमत हूं, और मैं उसको एक बार दोबारा से कहना चाहूंगा कि कोरोना वायरस बाकी वायरसों की तरह है, बहुत एक हद तक। वो इस हद में है कि हाँ, 80 से 85%, 90% तक जो लोग हैं उनको एसिम्प्टोमेटिक या बिना किसी मैनिफेस्टेशन के हल्का बुखार, नजला जुकाम करके वो निकल जाता है। वो एक बहुत अच्छी बात है, तो उनको दिक्कत नहीं है। वो मरीज काफी ठीक भी हो रहे हैं और अस्पताल में आने की जरूरत नहीं पड़ती है, या सिर्फ होम आइसोलेशन की प्रक्रिया के लिए आना पड़ता है, या एक बार दिखाने के लिए, और उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, कुछ एक 5 से 10% लोग हैं जिनको एडमिट भी होना पड़ता है, और कुछ उसमें से प्रतिशत है जिनको वाकई में घनी दिक्कत, जैसा कि आप कह रहे हैं, श्वसन तंत्र में या फेफड़ों में दिक्कत हो रह जाती है। जैसा कि अभी पिछले जनाब ने कहा कि गला खराब चल रहा है उनका कंटिन्यूअसली, तो वैसे ही जो है फेफड़ों में भी दिक्कत देखी जा रही है। हालांकि ये अमूमन बहुत ही कम लोगों में है, बहुत ही कम फीसदी के लोगों में देखी जा रही है, लेकिन हाँ, जिनमें देखी जा रही है उनमें कई बार बहुत घनी बीमारी देखी जा रही है, और उसको महीनों लग रहे हैं ठीक होने में। तो ऐसा नहीं है, तो ये जो है एक खतरनाक बात है, लेकिन फिर भी ये बहुत एक छोटे से, मैं कहूंगा बहुत ही एक कम लोगों में जो है, कम प्रतिशत लोगों में हो रही है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ, इसको हमें देखभाल करना जरूरी है, और इसके लिए हमें एक मरीज की खुराक देखभाल कैसे की जाए, और जो बदलता मौसम है उसको देखते हुए क्या कुछ सावधानियां बरती जाएं, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं, और आनंद जैन अमरावती से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आनंद, पूछिए अपना सवाल। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो निकली है, जो लंग्स के हिसाब से आगे चलकर कोविड में इन्फेक्शन नहीं कर सकता, ऐसा पता चला है। और मैंने और मेरे मां ने लिया है, जिनका ईयर अभी 85 ईयर्स ओल्ड है। कल चलकर जैसा इनको कोई मतलब इनको जैसा एक्सपोजर मिलता है, कोई गड़बड़ होती है, तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कितना काम करेगा? और जिनको कोविड हुआ है और जिनका कोरोना मिला है, होके गया है, तो उनको बाद में लंग्स की क्या केयर लेना है, ये मेरे को पता चला। जी डॉक्टर खिलनानी। नहीं, हाँ, इन्होंने 2 प्रश्न पूछे। एक तो ये है कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आप ले सकते हैं, ये बिल्कुल सही समय है, लेकिन ये आपको कोविड से कोई बचाव नहीं करेगा, ये आपको
समझना है। तो ये सोच के ना लें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कि आपको वो कोविड से बचाव करेगा। दूसरा जो प्रश्न है वो गूढ़ है, इन द सेंस कि जिनको कोरोना होता है, और कोरोना प्राइमरीली निमोनिया करता है दोनों लंग में, तो कुछ परसेंटेज 5% से भी कम के लोगों में एक लंग फाइब्रोसिस कहते हैं, जैसे हमें चोट लगती है तो एक स्कार बन जाता है, उसी तरह से लंग में भी स्कार बन सकता है। सबको नहीं बनता लेकिन बनने की संभावना रहती है। इन लोगों को फिर खांसी रहती है, सांस में फूलती है, कुछ पेशेंट्स को हमेशा ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है, ये हम देख रहे हैं। लेकिन ये नई बीमारी है, हम इसके बारे में भी अभी एक्सपीरियंस आ रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो जिन पेशेंट्स को जो बाकी जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हल्की फुल्की खांसी होना, शरीर में दर्द होना, टांगों में दर्द होना, एनर्जी का कम होना, शाम को थकावट होना, बुखार सा लगना लेकिन थर्मामीटर में नहीं आना, सिर दर्द होना और नींद का डिस्टरबेंस होना, ये सब जो है ना लक्षण हम देख रहे हैं कि कुछ हफ्तों और कुछ महीनों तक चलते हैं। तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना चल रहा है या कोरोना फिर से हो रहा है। इसके लिए आपको जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, चाहे क्रोसिन लें, गर्म पानी से गरारे कर ले, वो सब करते हैं। लेकिन कुछ स्मॉल प्रोपोर्शन में लंग फाइब्रोसिस जिसको हम कहते हैं वो होता है, वो हो रहा है। वो एक थोड़ी चिंताजनक बात होती है। उसके लिए भी दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों पे रिसर्च भी चल रही है, और कुछ जो लंग फाइब्रोसिस में हम दवाइयाँ दूसरी बीमारियों में देते हैं वो भी हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो उसका कोई कन्विंसिंग हमारे पास प्रूफ नहीं है इस समय। तो कहने का मतलब ये है कि आप फिक्र नहीं करें, ये कोरोना के बाद करीब 6 हफ्ते से 12 हफ्ते तक सिम्टम्स थोड़े बहुत चलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सब ठीक हो जाते हैं। री इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बहुत कम है, इसलिए आप ये मेरा जी। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद भी जुड़ गए हैं, सीनियर चेस्ट सर्जन सर गंगाराम हॉस्पिटल। डॉक्टर अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो विभिन्न चिंताएं आम लोगों की हैं और विशेषकर फेफड़ों को लेकर, लंग्स को लेकर या श्वसन संबंधी जो परेशानियां हैं उनको लेकर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो संक्रमण है वो किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना जो है वो किनकी रहती है, और जो पहले से ही इस तरह की श्वसन संबंधी बीमारियों से ग्रस्त हैं उनके लिए सावधानी बरतना कितना ज़्यादा हो जाता है? बहुत अहम सवाल पूछा है आपने कि जिन लोगों को ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग चेस्ट की बीमारियां हैं, जिसमें जैसे किसी को इंटरस्टिशियल लंग डिजीज एक बीमारी होती है जिसमें लंग्स उनके ऑलरेडी अफेक्टेड होते हैं, सीओपीडी होती है, और अगर किसी का लंग कैंसर या किसी अन्य कैंसर के लिए कीमोथेरेपी वगैरह लग चुकी हो, जो लोग स्टीरॉइड्स पे हैं, तो ये सब लोग, या जो स्मोकर्स हैं, इन सब की जो लंग की अपनी कैपेसिटी होती है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी होती है, उनके लंग्स वीक होते हैं, शिथिल होते हैं, और ऐसे में न केवल कोरोना होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि जब वो कोरोना एक ऑलरेडी डैमेज्ड ऑर्गन में जाके अटैक करेगा तो उसके शरीर के अंदर एंटर कर पाने के चांसेस ज्यादा हैं। बट ये भी है कि जब इन लोगों को लंग इन्वॉल्वमेंट होगा तो चूंकि इनके लंग्स ऑलरेडी डिजीज थे तो इनको डिजीज और ज्यादा सिवियर होगी, लंबी समय तक चलेगी, मोर्टेलिटी यानी कि डेथ के चांसेस ज्यादा होंगे, रिकवरी होगी तो डिलेड होगी, उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। और we seem to have a bad connection, but we have a caller online. Atul Srivastav is calling in from Mumbai. Srivastav जी, आप अपना सवाल पूछिए। lot for taking me into connection. सर, मेरा सवाल इंडोर प्रिकॉशन के लिए है। इंडोर में कई बार सुनने में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि भी विंटर के सीजन में अंदर में इंफेक्शन बढ़ने के चांसेस हैं। अभी हम लोग घर से बाहर कभी जाते नहीं हैं, हमेशा दरवाजा और विंडोज वगैरह बंद रहता है। हमारे घर में हम लोगों ने प्यूरीफायर्स लगाए हैं, हर रूम में एक रूम में प्यूरीफायर्स है, कपूर हम लोग जलाते हैं घर के अंदर। तो अब थोड़ा कॉन्फ्लिक्टी सिचुएशन समझ में नहीं आता। कोई बोलता है कि दरवाजा खोल के रखो, कोई बोलता है हवा में वायरस है। तो जब मैंने प्यूरिफाई कर दिया अपने रूम को
फिर दरवाजा खोला, फिर बाहर से फिर से अंदर वायरस आता है। ये कॉन्फ्लिक्टी टाइप के सिचुएशन दिमाग में समझ में नहीं आता कि प्रिकॉशन लेना क्या है। दरवाजा और विंडोज खोल के रखना है या केवल प्योरीफाई यूज करना है, समझ में नहीं आ रहा सर। इसके बारे में प्लीज काइंडली हेल्प करें, बहुत जरूरी समझ में आ रहा है। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, शायद आप आंसर दे सकते हैं। हाँ, ये जो है देखिए, ऐसा है कि वायरस हवा में घूमता घामता नहीं आएगा, तो ये चीज जरूरी है। लेकिन हाँ, आप जैसा कह रहे हैं, प्रदूषण से जो है आपको अगर मुक्त रहना है, प्रदूषण बढ़ने की संभावना सर्दियों में ज्यादा हो जाती है। अभी जैसे मिस्टर मार्क और रमा मैडम ने भी कहा कि स्टबल बर्निंग शुरू हो गई है, तो थोड़ा धुआं ज्यादा हो जाता है फसल कटने के बाद हर जगह पूरे जो है भारत में। तो इसको ध्यान रखते हुए आप अगर एयर प्योरीफायर आप यूज कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अगर आप एयर प्योरीफायर यूज करते हैं फिर खिड़की खोल देते हैं, वो तो सब बराबर हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप खिड़की इसलिए खोल रहे हैं कि हाँ आपको जो है बाहर की हवा लेना चाहते हैं, इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि बाहर की हवा अच्छी है, तो बाहर की हवा से घूमते हुए कोरोना नहीं आएगा। कोरोना जो है वो आमतौर में वैसा एयरबॉर्न नहीं है इन्फेक्शन, वो एक ड्रॉपलेट बॉर्न इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट्स जो है वो बारिश की बूंदों की तरह भारी होती हैं, तो वो सेटल कर जाती हैं। इसलिए कहा जाता है 2 मीटर या 6 फीट के डिस्टेंस से अगर आप दूर रहते हैं कोई, तो खिड़की के जब तक कोई बाहर खड़े होकर के थूकेगा यानी खिड़की के अंदर, तब तक अंदर इन्फेक्शन आने के चांसेस नहीं है। तो ये खिड़की खोल सकते हैं, बल्कि खिड़की खोलने से अच्छा रहता है। जैसा कि डॉक्टर खिलनानी ने भी कहा, अगर आप मास्क बंद करके रहते हैं थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होने लगती है। वैसे ही कमरा अगर आप बंद रखेंगे, खासतौर से सर्दियों में अगर आप हीटर या ऑयल इमर्शन वाले हीटर चलाएंगे, तो थोड़ी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है कमरे में। तो वो जरूरी है कि सवेरे शाम तो खिड़की खोलनी ही चाहिए। हवा का आवागमन अंदर बाहर होना बहुत जरूरी है, और इसमें मिथ्या बात पे नहीं रहे कि हवा से घूमता घामता वायरस अंदर आएगा, वो कतई नहीं संभावना है। अभी तक जितना भी है उसमें हमें इतना नहीं पता चला है। डॉक्टर खिलानी कुछ कहना चाहते हैं? जी, प्रॉपर वेंटिलेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसी से जुड़ा एक सवाल है डॉक्टर अरविंद, आपसे करना चाहेंगे कि जिस तरह से सिम्टम्स आने के साथ ही जो चिंताएं हैं वो बढ़ जाती हैं और एक मानसिक परेशानी होना स्वाभाविक हो जाती है, तो किस किस तरह के टेस्ट आप प्रिस्क्राइब करते हैं कि सही इन्फॉर्मेशन मिले, और किस स्टेज पर ये टेस्ट कराने चाहिए? Like we seem to be having a problem connecting with Dr. देखिए, जब सिम्टम शुरू हो तो हमें जैसे ही फीवर हो, और आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप बताएं। हेलो जी। तो जब आपको सिम्टम शुरू हो, तो जो जैसे ही फीवर शुरू हुआ तो सबसे पहली चीज तो हमें जो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट और लॉस ऑफ स्मेल है, ये चीजें दूसरे वायरल फीवर्स में नहीं देखी जाती। बाकी अगर खाली फीवर है, गले में खराश है, थोड़ी सी खांसी है, बदन टूटा है, सर दर्द है, तो ये चीजें दूसरे वायरल फीवर्स में भी हो सकती हैं। हम ये देखते हैं कि ये पेशेंट को किसी के साथ एक्सपोजर की हिस्ट्री है कि नहीं, और फिर कोरोना टेस्ट एडवाइस करते हैं। जो टिपिकली जो बेस्ट टाइम होता है कराने का, वो अराउंड 3rd to 5th डे ऑफ फीवर होता है। उससे पहले अगर आप कराएंगे तो हो सकता है कि वो टेस्ट नेगेटिव आए, तो इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है कि इसके बाद में आप टेस्ट कराए जाएं। डॉक्टर अरविंद, चेस्ट संबंधित को बोलते हैं, जो चेस्ट संबंधित टेस्ट होते हैं वो उनके बारे में पूछना चाहेंगे स्पेसिफिक। तो चेस्ट संबंधित टेस्ट में हम अगर पेशेंट को, सबसे जरूरी जो चीज है जो आजकल बोली जा रही है, वो हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन है। कि इसमें नॉर्मली जब किसी की ऑक्सीजन कम होती है लंग इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो उस व्यक्ति को सांस ऑक्सीजन कम होने के बावजूद उनको कोई तकलीफ नहीं होती। इसलिए प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ ऑक्सीजन ये सबसे जरूरी चीज है, नंबर 1। अगर उसमें कुछ दिक्कत आपको लगती है तो फिर हम सबसे पहले चेस्ट एक्सरे कराते हैं, जिसमें हमें कुछ सजेस्टिव फाइंडिंग्स मिल सकती हैं। अदरवाइज फिर सीटी स्कैन कराया जाता है, जिससे कि लंग के इन्वॉल्वमेंट का न केवल प्रेजेंस या एब्सेंस पता लगती है, बट उसकी डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी पता लगता है, जो बाद में पेशेंट की मॉनिटरिंग करने में, फॉलो अप करने में कारगर सिद्ध होता है। I think that has also helped some other people who were asking about tests. They have got their answer. Dr. Khilnani, there is a question. A gentleman 55 days back had COVID, and after that was suffering from asthmatic cough after COVID.
then went to a restaurant and ate some food and then came back and now suffering from nasal blockage and headache and is wondering whether there is a chance of reinfection. No, this is not a reinfection. As I said, that these patients sometime after recovering from like any other viral fever with the coronavirus also, the irritation in the throat continues, and some people who have a tendency for bronchial hyperreactivity or those who have asthma, they'll continue to have asthma attacks for a little longer time. But what this gentleman is describing, that he had some restaurant food, maybe a nasty food, and he has had sometimes there's a relationship of what we call as gastroesophageal reflux. Because of that, there is irritation of throat and there is some running nose and blocked nose. Not to worry about that, be careful. He should take treatment for gastric also, as well as treatment for some anti-allergic tablet and some nasal spray, and he'll be fine. Not to worry, and it's not directly related to corona infection. Thank you. जी, हमारे एक व्यूअर जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शन लाल जी हमारे साथ जम्मू से जुड़े हैं। जी दर्शन जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम जी, ऐसा है कि मेरे को 2-3 तारीख को बुखार आया, तो उसके बाद मैंने टेस्ट कराया था कोविड का, तो मेरे को कोविड पॉजिटिव दिया था उन्होंने। अब तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थोड़ी वीकनेस लग रही है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं ये आपसे सवाल लेना चाहता हूँ, कौन सी डाइट खाऊँ, क्या खाऊँ? जी, डॉक्टर अनुपम, आप इनके सवाल का जवाब देना चाहेंगे? देखिए, अगर आप पॉजिटिव आए हैं कोविड से और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, बुखार था, बुखार अभी अगर नहीं चल रहा है, बुखार चल रहा है, तो आप अपना जो है पैरासिटामोल की टैबलेट ले लीजिए या क्रोसिन की टैबलेट ले लीजिए आप। और जो है दूसरी चीज है, बुखार के साथ साथ जैसा कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, सैचुरेशन ऑक्सीजन का जरूर चेक करिए। वो जो है हर 4 से 6 घंटे पे दिन भर में चेक करना जरूरी है। और सैचुरेशन जो ऑक्सीजन का लेवल जो है, जो SpO2 हम लोग कहते हैं, अगर वो 95% से ज्यादा है तो बेफिक्र आराम से घर में रह सकते हैं और रेस्ट जरूर करें। अगर किसी भी समय आपको लगता है कि वो बार बार जो है 95 से कम जा रहा है और कम हो रहा है, तो फिर अस्पताल में जाकर के जरूर दिखाएं। तब तक जो है, जैसा कि डॉक्टर खिलनानी कह रहे थे कि यहाँ नमक के घुलने पानी से गरारा, भाप, और बाकी बुखार के लिए जब भी वो 99.5 या 100 से ऊपर जाए तो पैरासिटामोल की टैबलेट 500 mg की या 650 की जरूर लें। बिल्कुल दर्शन जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और इसी तरह के सवाल बहुत सारे दर्शकों के हैं, विशेषकर जिनके सांस और लंग से संबंधित बीमारियां हैं। डॉक्टर अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड के बारे में जो रिपोर्ट्स आती हैं वो यही बताती हैं कि सबसे खतरनाक ये तभी साबित होता है जब ये आपके श्वसन तंत्र या लंग्स को प्रभावित करने लग जाता है। तो किस तरह से ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, किस तरह से श्वसन तंत्र को जो है वो इससे बचाया जा सकता है, और जो विभिन्न पेशेंट्स हैं जो इस की, चाहे जिनको टीबी है, अस्थमा है या इन सब चीजें हैं, तो इन सब को लेकर किस तरह से एक बचावात्मक कदम उठा सकते हैं ये लोग जो इन गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं? जी, आपने बहुत अहम सवाल किया है और इसके 2 पहलू हैं। एक, आपने पूछा कि इस तरह के पेशेंट जो टीबी या अस्थमा या इस तरह के पेशेंट अपने को किस तरह से बचा सकते हैं, और दूसरा पार्ट है कि अगर उनको हो जाए तो वो उसका पहले इलाज कैसे हो। तो बचाने के लिए तो देखिए, जो 3 हमारे सबसे अहम पहलू हैं, मास्क पहनना, एक तो भीड़ वाली जगहों पे ना जाना, मास्क पहनना, 1.5 से 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग रखना, और कोई भी अनजानी चीज छूने के बाद हाथ धोना। तो ये तीनों जो गोल्डन प्रिकॉशंस हैं, ये किसी भी सांस की प्री एग्जिस्टिंग बीमारी वाले पेशेंट को बहुत ही ज्यादा एहतियात रखना चाहिए। उनके घर वालों को उनको फूल की तरह संजो के कहीं छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को होने का चांस ज्यादा है, और अगर हो जाएगा तो उनमें मोर्टेलिटी का चांस ज्यादा है। तो प्रिवेंशन का तो ये एस्पेक्ट रहा कि यही जो प्रिकॉशंस के मेथड सबके लिए हैं, वही उनमें और ज्यादा कड़ाई से अपनाई जानी चाहिए। दूसरा रहा कि अगर इन लोगों को हो जाएगा तो इन लोगों में लंग के इन्वॉल्वमेंट होने के चांस ज्यादा हैं, और लंग इन्वॉल्वमेंट होगा तो उनके शायद सीरियस होने के भी चांस ज्यादा हैं। तो इन लोगों को तुरंत हम ऐसे कोई भी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वाले पेशेंट्स होते हैं, उनको फिर हम घर में नहीं रखते हैं, उनको अस्पताल में रख के उनकी इंटेंसिव मॉनिटरिंग करते हैं, ऑक्सीजन चेक करते हैं, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन किया जाता है, और अगर उसमें कुछ भी सिम्टम्स दिखते हैं कि इनके लंग का इन्वॉल्वमेंट है, तो जो हमारी करंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, एंटीवायरल्स हैं, उसमें स्टेरॉइड थेरेपी हैं, उन सबका इन पेशेंट्स में ज्यादा जल्दी और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से इस्तेमाल किया जाता है।
सपोर्टिव केयर चाहिए होती है। चेस्ट की फिजियोथेरेपी का बहुत रोल होता है और न्यूट्रिशन यानी डाइट को अच्छी तरह मेंटेन करने का भी बहुत रोल होता है। लेकिन सबसे अहम चीज है कि ये पेशेंट्स अपने को बचा के रखें ताकि उनको ये बीमारी ना हो, क्योंकि होने के सूरत में फिर ट्रीटमेंट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। Let's take another caller, Kishan Kumar calling in from Delhi. आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। ये क्या नाम, मेरे फादर को अगस्त में कोविड हुआ था, 7 अगस्त को पॉजिटिव आए थे। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट किया था मैंने। तो लंग्स रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन क्या नाम है, उनको ना हॉस्पिटल में उनका बीपी एकदम कर जाता था। और उसके बाद भी जब डिस्चार्ज भी होके आए, वो पोस्ट कोविड में भी जो है उनका बीपी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। पहले नहीं था। वो क्या होता है, कभी एकदम से अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाता है और फिर मॉर्निंग में एकदम से गिरता है। तो उनको हमने मतलब जिस डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट चला था हॉस्पिटल में, उन्हीं से ही ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। लेकिन वो बीपी की प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है। कभी एकदम बढ़ जाता है, वो 150 160 क्रॉस कर जाता है, कभी 100 से भी नीचे आ जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं मतलब पल्मोनोलॉजी, मतलब जिन डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है मैं उन्हीं से कंटिन्यू करूं, या मुझे राइट टाइम है कि मुझे अब किसी कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए? डॉक्टर किलानी, आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ, नहीं, मैं ये इनको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ज्ञान है अब तक, ये कोरोना से रिलेटेड नहीं है। उनको कोरोना हुआ अगस्त में, अब ठीक हो गया। अब ब्लड प्रेशर के लिए आप किसी फिजिशियन को दिखाना चाहें या कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहें, एक ही बात है, और ये ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। इसको आप कोरोना से रिलेट करने की कोशिश ना करें। थैंक यू। Dr. Kilnani, there's also another question, a gentleman, because you had spoken earlier about fibroids or fibrotic situation in the lungs. They want to know whether there's a permanent cure for that kind of situation. तो ये जो फाइब्रोसिस जो मैंने आपको बताया, ये एक स्कारिंग जैसे हो जाती है। इसकी ये बहुत बहुत कम लोगों में होती है। अक्सर ये देखा गया है कि 3 महीने बाद ये क्लियर हो जाता है लंग पर। जिनमें अगर रह जाता है, जिनमें परमानेंट, जिसको फाइब्रोसिस कहते हैं, ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टिस, ये टेक्निकल टर्म्स है। इसका जो ट्रीटमेंट शुरू में तो स्टीरॉयड से होता है, जो कि कोरोना के इलाज के लिए भी दिया जाता है। लेकिन हमें अभी तक ये वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड फाइब्रोसिस को कम करते हैं या रोकते या नहीं। अगर तो सिवियर फाइब्रोसिस है तो उसकी जो फाइब्रोसिस की दवाइयाँ जो हम दूसरी बीमारियों में यूज करते हैं, उनका नाम परफिनाडोन और लिंटाडिनिब है। लेकिन आप प्लीज नाम पे नहीं जाएं, ये ओवर द काउंटर नहीं ली जाती है। ये सिर्फ एक स्पेशलिस्ट लंग के पल्मोनोलॉजिस्ट ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये इसका जो बेनिफिट होता है वो बहुत ऐसा नहीं होता कि आपने 4 गोली खाई और फाइब्रोसिस ठीक हो गया। ये इसलिए दी जाती है कि आगे फाइब्रोसिस कम हो और थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी हो। ये बहुत सुपर स्पेशलाइजेशन है इस फोरम में, इससे ज्यादा मैं बताना उचित नहीं समझता। हमारे साथ व्यूअर्स लगातार जुड़ रहे हैं और किरण कुमार देसाई हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। जी किरण जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मुझे सिर्फ ये चेक करना था। मेरे फैमिली में 3 लोग पॉजिटिव है और चांसेस मेरा भी है। 2 हफ्ते से दवाई ले ही रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2 वीक्स होने आए हैं नॉर्मल दवाई से। अभी तक टेस्ट करवाया नहीं है। लेकिन इशू ये है कि ऑलरेडी हेपेटाइटिस है और HIV है। तो इसमें क्या और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, या एडमिट हो जाना पड़ेगा, या फिर कैसे करना पड़ेगा? डॉक्टर प्रकाश, डॉक्टर अनुपम प्रकाश। हाँ, मेरे ख्याल से देखिए, अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है तो फिर तो टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर घर में किसी को भी होता है तो संभावना यही रहती है कि आपको भी हो जाएगा। आप कह रहे हैं घर में 3 लोग ऑलरेडी संक्रमण से प्रभावित हैं, तो चांसेस ये हैं कि आपको भी होने की संभावना काफी ज्यादा है। हालांकि 2 हफ्ते से आप कह रहे हैं दवा ले रहे हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा है, इतना ज्यादा दवा लेने की जरूरत भी नहीं है। और दूसरा ये है, मेरे ख्याल से आप दवा ना लेकर के जांच करा लीजिए, जिससे कि आप निशा खातिर हो जाए कि आपको दिक्कत है या नहीं है। और अगर दिक्कत है तो फिर घर पे नहीं रहना है। अगर आपको कोविड की बीमारी आती है तो कोई भी संग में बीमारी हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, चाहे हेपेटाइटिस है, कोई भी और वायरल इन्फेक्शन है, अगर उसमें आपको कोरोना वायरस से संक्रमण होता है तो जरूर अस्पताल में रहें, क्योंकि कई बार ये बहुत एक साइटोकिन स्टॉर्म तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है, जो कि हम लोग अस्पताल में भी हमें मैनेज करने में बहुत दिक्कत होती है। तो घर से अस्पताल पहुंचने का समय उस समय बहुत कम हो सकता है, इसलिए वो संभावना के लिए हमेशा अस्पताल में रहें। कोई भी अगर आपको बीमारी हो, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे कोई और
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ब्लड प्रेशर, शुगर या दिल की बीमारी है, तो हमेशा अगर कोरोना का संक्रमण हो तो सबके लिए संदेश यही है कि वो अस्पताल में जाके भर्ती होकर रहे। डॉक्टर अनुपम, इसी से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आजकल जो होम आइसोलेशन है उसमें भी वो भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, ज़्यादातर लोग उसमें भी रहते हैं और जो रिकवरी रेट है वैसे अच्छा है, लेकिन जो गंभीर मामले आते हैं वो तभी आते हैं जब ये आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है या लंग्स में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो जो लोग हॉस्पिटल में हैं वहाँ तो नियमित चेकिंग होती है, जो होम आइसोलेशन में होते हैं या जिन लोगों ने अभी चेक नहीं कराया है, वो दवाई ले रहे हैं, वो सिम्टम्स पर ही अभी पूछ रहे हैं कि आगे क्या करना है, तो किस तरह से ये असेस किया जाए कि अब वो स्टेज आ गई है जहाँ पर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, या किस तरह से इस पर निगरानी रखी जाए और इस पर एक चेक लगाया जाए? देखिए, जो हम लोग होम आइसोलेशन पे भेजते हैं और जो भारतवर्ष में पूरे जो है गाइडलाइंस हैं जिनके लिए कहा गया है, तो उन मरीजों को एक सैचुरेशन प्रोब जरूर जो है अथॉरिटीज जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जरूर देती हैं। तो सबसे जरूरी ये है कि मरीज को खुद लगना चाहिए कि वो ठीक है और वो घर पे रहने लायक है। अगर सैचुरेशन प्रोब आपका 99% दिखा रहा है, लेकिन अगर आपको चिंता ज्यादा है या आपको लग रहा है कि आप घर पे रहने लायक नहीं है, तो जरूर अस्पताल में जाकर के भर्ती हो, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ भी दिक्कत, सांस फूलना लगती है, तो सांस फूलना एक चीज है जो कि वाकई में दिक्कत हो सकती है, जैसा कि आपने कहा श्वसन तंत्र पे प्रभाव हो सकता है या फेफड़े पे असर हो सकता है, तो इसलिए सांस फूलना एक चीज है। अगर मरीज को कभी भी लगे तो वो जरूर अस्पताल जाकर के दिखाए। दूसरी चीज है, बुखार अगर कंट्रोल के बाहर है तो भी जरूर दिखाएं, हाल क्योंकि कई लोगों में देखा गया है 102, 103 बुखार भी रह रहा है, 10-12 दिन तक चल रहा है। तो ऐसे मरीज को घर में नहीं रहे, क्योंकि वो ड्रिप और खुराक की जरूरत होती है, जो कि मरीज इतने ज्यादा बुखार में नहीं खा पाएगा, तो इसलिए वो जरूरी है। और अगर सैचुरेशन प्रोब पे जैसे मैंने कहा कि अगर ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में 95% से कम होता प्रतीत होता है, तो जरूर अस्पताल में जाके भर्ती हो। इसके अलावा अगर कोई भी और बीमारी है, मैं एक बार फिर से कहता हूं, अगर कोई भी और बीमारी है, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो नॉन इन्फेक्टिव इलनेस हो, मतलब ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर दिल की दिक्कत या कोई भी और बीमारी से आप ग्रस्त हैं, तो जरूर अस्पताल में ही रहें। चाहे आपको दिक्कत होगी, घर में हमेशा कंफर्ट ज्यादा होता है, लेकिन अस्पताल में रहना इस समय कोविड के संक्रमण से बचने के लिए बहुत जरूरी है। Dr. Arvind Kumar, there's a question about senior citizens. What precautions should they be taking at approaching the winter months, specifically with regard to, their lungs? Yeah, this is an excellent and a very practical question. So senior citizens, by virtue of age and by virtue of the fact that often they might be having associated other diseases, they are not only at higher risk of acquiring the disease, but once they acquire the disease, it has been seen worldwide that the death chances are much higher in senior citizens as compared to their younger age counterparts. So it becomes very important for senior citizens to take utmost precaution to avoid getting this infection. Unfortunately, the precautions remain the same irrespective of age and irrespective of whether you have pre-existing disease or not. That is, avoiding going out, avoid going out of the house as far as possible. If necessary, do wear a good mask, cover your nose and face properly, maintain 1.5 to 2 meter distance. I always tell everybody that please presume everybody else to be a positive person. Right. Away. If you keep 1.5 to 2 meter distance, presume every surface that you touch to be positive for corona. Keep washing your hands. These three precautions have to be practiced very, very rigidly by our elderly people, particularly in the coming approaching months. So they have to do everything to avoid getting this infection. Now, if they do get infection, we don't advise home isolation for them. They must immediately get admitted to the hospital. They should have a thorough checkup, because their chances of getting lung problem or other problem, even heart and other problems, are much higher. Also, it has been seen that if they get these involvements, their deterioration is much faster than their younger counterparts. So they ought to be in the hospital under intensive monitoring. But I would lay more stress on preventive part so that they don't get it. Thank you, Doctor. Abhishek is calling in from Jammu. Abhishek, आप अपना सवाल पूछिए. हाँ जी सर, मुझे क्या हो रहा है कि फॉर लास्ट 1 वीक ना वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है मुझे,
और इसमें क्या हो रहा है, मैंने कोविड टेस्ट भी कराया अपना 6 डेज के बाद, मतलब कल ही रिपोर्ट आई है उसकी कोविड-19 की, वो भी नेगेटिव है, बट स्टिल मैं वीकनेस फील कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ बेड से। Dr. Kimnani, perhaps you can answer this question. हाँ, नहीं, it's okay. You know, this is happening, बहुत ये कॉमनली हो रही है, क्योंकि सब लोग परेशान तो हैं, डर भी है, कमजोरी के कई कारण होते हैं, मानसिक तनाव से भी कमजोरी होती है और वैसे भी हो सकती है। तो अगर इन्होंने टेस्ट करा लिया तो बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल RT-PCR कराया होगा। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि रैपिड एंटीजन टेस्ट बहुत हो रहे हैं, सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा प्रदान करी है, लेकिन इसमें ये हो रहा है कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो सेंसिटिविटी होती है, पॉजिटिविटी होती है, वो करीब 50-60% ही होती है। मतलब 100 पेशेंट होंगे तो वो 50-60 में पॉजिटिव होगा और 40 में नेगेटिव होगा। तो आप सोचें कि वो जो 40 पेशेंट है जो एक्चुअली पॉजिटिव है, वो झंडा लेके घूमते हैं कि मैं तो भाई कोविड नेगेटिव हो गया, तो वो घूमते रहते हैं। एक तो ये बात। अब इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं इन जनाब के बारे में कि अगर इनको बुखार नहीं है और बदन में दर्द नहीं है, गला खराब नहीं है, इनका टेस्ट ठीक है, खांसी नहीं है और नाक नहीं बह रही है और सेंस ऑफ स्मेल ठीक है, तो इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आराम करें, अच्छा खाना खाएं, ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इनको ये जो मैंने सिम्टम्स बताए ये डेवलप होते हैं तो आप रीटेस्ट कराएं। उसकी वजह ये है कि कोई भी टेस्ट, चाहे वो RT-PCR हो चाहे या रैपिड एंटीजन टेस्ट हो, वो 100% सेंसिटिविटी नहीं है। उसकी सेंसिटिविटी जो RT-PCR की 55 से 80% की है, तो थोड़ा चांस फॉल्स नेगेटिविटी का रहता है। तो इसलिए अगर ये सिम्टम, अगर बुखार वगैरह आता है तो प्लीज फिर से टेस्ट कराएं। इसी से संबंधित सवाल, Prakash, there is a question about a person who's asked this quite a few times कि his daughter has only had 1 minute contact with a COVID positive patient and Arogya Setu is showing orange and she is getting very concerned about it. Should she take a test? देखिए ऐसा है, बहुत सही चीज पूछी आपने, क्योंकि आजकल आरोग्य सेतु जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है और हेल्थ अथॉरिटीज ने कहा है सबके पास है, तो ये बहुत जरूरी है ये समझे कि आरोग्य सेतु जो ऐप है वो ये आपको बताता है कि आपके आसपास डेंजर कितना है, खतरा कितना है। तो अगर आप किसी के पास 1 मिनट के लिए भी जा रहे हैं तो वो बता रहा है, वो बिल्कुल सही बता रहा है कि हाँ संक्रमण के आप पास गए हैं। लेकिन हम लोग जब इवेल्युएट करते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं कि ये जो है एक सिग्निफिकेंट एक्सपोजर नहीं कहलाता है। अगर आप 15 मिनट से कम किसी के पास रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट एक्सपोजर नहीं है। लेकिन इसमें 2 चीजें और जरूरी हैं। अगर उनकी बेटी मास्क पहन करके गई थी और दूरी बनाई हुई थी 2 मीटर की, तो फिर ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि फिर चांसेस बहुत ही कम है। सबसे ज्यादा चीज जो खतरे से बचाती है आपको वो है आपके मुंह के ऊपर पट्टी या आपके मुंह के ऊपर जो मास्क आपने पहना हुआ है, क्योंकि कुछ भी होगा अगर आप करीब भी जाएंगे तो भी जो है मास्क के मुंह के रास्ते, जो श्वसन तंत्र आप कह रहे हैं, उसी के रास्ते ही इन्फेक्शन अंदर जाएगा। तो अगर वो आपने बचा करके रखा हुआ है, मास्क पहने हुए थे, तो चांसेस बहुत ही कम है और फिर रिस्क नहीं है एक्सपोजर से आपको संक्रमण होने का। बिल्कुल, लेकिन इस तरह की जो संक्रमण से संबंधित कई बार चिंताएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है इस बात को स्पष्ट करना कि कौन से सिम्टम्स जो हैं वो नॉर्मल फ्लू के हैं या कौन से सिम्टम्स कोविड के हैं। इसमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब चेस्ट इन्फेक्शन की बात आती है, विशेषकर निमोनिया की बात आती है, तो तब जो है ये चिंताएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। डॉक्टर अरविंद, आपसे हम जानना चाहेंगे कि नॉर्मल निमोनिया और कोविड से संबंधित निमोनिया, इसमें क्या अंतर होता है? देखिए, कोविड का निमोनिया कोविड इन्फेक्शन के बाद होता है। तो पहले आपको जैसे बुखार है, गले में खराश है, खांसी होना है, बदन टूटना है, कभी कभी डायरिया भी आजकल लोगों को हो रहा है, ये सब सिम्टम्स चलते हैं। और टिपिकली जो ये निमोनिया वाली प्रॉब्लम डेवलप होती है ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक के बिगनिंग में, उस समय डेवलप होती है। इस समय एक साइटोकाइन रिस्पॉन्स आता है और उसकी वजह से लंग्स में डैमेज होता है। और वो स्टेज होती है जब पेशेंट्स को सांस लेने की प्रॉब्लम या ऑक्सीजन ड्रॉप होने लगता है और धीरे धीरे उनकी कंडीशन बिगड़ जाती है। अक्सर इन पेशेंट्स का फीवर सेटल नहीं होता और वो कंटिन्यू करता है। एक टिपिकल निमोनिया का पेशेंट है जिसकी बीमारी
की शुरुआत ही निमोनिया से हुई है। मान लीजिए कोई एक 70 साल के व्यक्ति हैं, उनको सीओपीडी था, उनको उसके ऊपर निमोनिया हो गया, तो उनको 0.0 से ही सांस की प्रॉब्लम होगी, उनको खांसी काफी होगी, उनकी सांस फूल रही होगी, उनको चेस्ट में सिम्टम्स होंगे। और जिस समय इन पेशेंट्स को एग्जामिन किया जाता है तो उस पेशेंट में आपको एग्जामिन करने पर निमोनिया के जो साइंस हैं वो क्लियरली मिलेंगे, और आप एक्सरे अगर उस स्टेज पे करेंगे तो आपको उसके पैचेस मिल जाएंगे। जबकि कोविड में ये चीज टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट वीक यूजुअली डेवलप होती है। तो इस तरह से इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट किया जाता है। और कोविड में क्या इसमें जो फीवर है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए फीवर होना ये भी जरूरी है? या यूजुअली जो कोविड का पेशेंट जब निमोनिया की स्टेज में जाते हैं तो कोई बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हो और सडनली उसको लंग का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि पूरे विश्व में ऐसा एक भी केस नहीं हुआ होगा, क्योंकि मेडिसिन में शायद सब कुछ संभव होता है, बट इट इज नॉट अ कॉमन अकरेंस। यूजुअली these patients have fever, उनको 5 से 6 दिन फीवर चलता है, और जैसा मैंने कहा टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट वीक फिर उनको ये लंग के सिम्टम्स डेवलप शुरू होते हैं। लेकिन जो न्यूमोनिया का पेशेंट है उसको न्यूमोनिया ही एक्चुअली पहली चीज होती है जिसकी वजह से उसको फीवर डेवलप होता है। तो इसमें एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप कोविड पेशेंट को जिसको अभी लंग इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फीवर है, एग्जामिन करेंगे तो उसकी चेस्ट बिल्कुल नॉर्मल फाइंडिंग्स होंगी। जबकि एक निमोनिया का पेशेंट जिसको आज ही निमोनिया शुरू हुआ है, जब हम देखेंगे तो कोई भी फिजिशियन उसको देख करके डायग्नोस कर सकता है। बुखार दोनों में हो सकता है, बुखार के बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करते। जी, आपसे आगे भी इस पर बात करेंगे। हमारे साथ एक व्यूअर जुड़ गए हैं, उमेश हमारे साथ झारखंड से जुड़े हुए हैं। जी उमेश, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम, 15 या 20 दिन पहले में हमको फीवर हो गया था और सर्दी और खांसी भी था, तो धीरे धीरे डॉक्टर सलाह लेके धीरे धीरे दवाई खाए तो ठीक हुआ। बीच में सांस का थोड़ा प्रॉब्लम रात में कभी हो जाता था, तो वो भिक्स का गर्म पानी में इनहेल किए तो सांस का प्रॉब्लम ठीक हुआ। तो करीब 15-20 दिन के बाद अभी 5-6 दिन पहले ठीक हो गया, फीवर ठीक हो गया, सर्दी खांसी भी लगभग ठीक हो गया। लेकिन अभी सर पेट में, राइट पेट में पेन हो रहा है, कभी पीठ में हो जाता है, कभी आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है। तो उसके लिए डॉक्टर सलाह लेके वो कुछ दवाई पेंटॉप कुछ से बताए तो वो ले रहे हैं, लेकिन अभी टेस्ट में कुछ कम हुआ है इधर, लेकिन अभी है ही। डॉक्टर खिलानी आप इनको समस्या समझ पाए? हाँ, नहीं मैं समझ गया, इनकी बात समझ गया। इनको फीवर हुआ, फीवर के बाद फीवर ठीक हो गया, जो भी गला वाला खराब था वो ठीक हो गया, पेट की तकलीफ है। मैं आपको ये कोई भी पंडित नहीं बता सकता कि ये कोरोना था कि नहीं, अगर था तो ये खत्म हो चुका है पहले, तो इससे बिल्कुल ना डरे। दूसरी बात ये, क्योंकि 17 दिन के बाद 14 दिन के बाद ये नेचुरल हिस्ट्री होती है, कोरोना खत्म हो जाता है। अब आपको जो पेट की तकलीफ है वो कोरोना से रिलेटेड नहीं है मेरे ख्याल से। उसका आप किसी डॉक्टर को दिखा के उसका मुआयना करा के आप उसका प्रॉपर इलाज करें, सिर्फ पेंटॉप वगैरह पे डिपेंड नहीं करें, लेकिन डरे नहीं, ये साधारण बीमारी है, कोरोना से रिलेटेड नहीं। थैंक यू। Dr. Anupam Prakash, there's a question. His wife has tested positive on 25th July and everything seems well after home isolation, 17 days. But of late she is beginning to feel some strange feelings. There's pain in her hands and her fingertips are getting numb. Is this related to COVID? देखिए, मौसम बदल रहा है, उससे ज्यादा संभावना है कि ये दिक्कत हो रही होगी इन्हें। और अगर अधेड़ उम्र के हैं तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह में भी ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं कई बार। कोरोना से संभावना इसकी होने की काफी कम है, लेकिन ये है कि अगर दिक्कत इन्हें लग रही है कि ज्यादा हो रही है तो एक बार डॉक्टर को दिखा लें। वैसे लग नहीं रहा है कि कोई ऐसी बहुत घबराने वाली बात तो कतई नहीं है, और कोरोना से इसे लिंक ना करें। जैसे डॉक्टर खिलानी ने भी कहा, चांसेस बहुत ही कम है इनको, तो ना उसके बराबर ही संभावना है कि कोरोना से कुछ होगा। लेकिन हाँ, मौसम बदल रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं, प्रदूषण के लेवल भी बढ़ रहे हैं, तो इन सब चीजों से और जो और वायरसेस आजकल घूम रहे हैं उन सब से दिक्कत संभावना होने की ज्यादा है उससे।
जी, इसमें एक बेहद अहम सवाल ये भी हो जाता है, जिस तरह से मौसम बदल रहा है या खान पान की आदतें हैं या अन्य आदतें हैं, वो किस तरह से प्रभावित करती है इस पूरे तंत्र को, और विशेष तौर पर किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। जब सर्दियों का मौसम है, वायु प्रदूषण बढ़ जाएगा, तब लंग्स के ज़्यादा अफेक्टेड होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए, या जो बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं उनके लिए, या जिनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो किस तरह की सावधानियाँ घर के साथ साथ बाहर भी रखने की जरूरत है। आप you want me to respond to this? जी डॉक्टर खिलनानी। हाँ, तो ये तो जब ये प्रदूषण बढ़ेगा और जब ये AQI अभी 200 है, अभी 400 भी होगा, 500 भी होगा, तो ये गला खराब होना, खांसी होना, ये अगर बुखार साथ में नहीं है तो काफी टाइम ये प्रदूषण की वजह से रहता है। बाकी तो ये देखिए, फेस्टिव सीजन में जो आप बाहर खाना खाते हैं और उससे जो डिस्टरबेंसेस होते हैं सिस्टम के, वो तो जो नॉर्मली होते हैं उतने ही होते हैं। उसको कोरोना से कोई दहशत फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोरोना, ये जो पिछले पेशेंट ने जो बोला कि उनको सिम्टम हो रहे हैं, बहुत सारे न्यूरोसाइकेट्रिक मतलब मानसिक तनाव की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स हो रहे हैं उन पेशेंट्स को जो कोरोना से बिल्कुल 100% रिकवर हो चुके हैं। तो मैं ये थोड़ा डिविएट कर रहा हूँ कि अगर आदमी का सैचुरेशन ठीक है, बहुत ज़्यादा खांसी नहीं है, चलने फिरने में, सीढ़ी चढ़ने में कोई तकलीफ नहीं है, और बाकी जो सिम्टम्स हैं उनको थोड़ा आप नज़रअंदाज करके थोड़ा समय दें तो वो ठीक हो जाएगा। बाकी जो आपने जो प्रश्न पूछा कि जब फेस्टिव सीजन आ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ेगा, उसके लिए जो जनरल केयर है और जनरल जो नॉर्मल अच्छा खाना, पौष्टिक आहार, फल सब्जियां, दूध वगैरह लेना, वही हमारी सलाह है। धन्यवाद। Dr. Khilnani, in the days gone by, at the early days of this illness, when you used to come to the studios, in fact, you came to our studio once, and you said that this virus will become endemic. So it has become endemic now. It's not going away at all. So how would we have to deal with this going ahead in the future? Because some people are saying it's going to become like the common cold. People are getting, reinfection. They are worried about reinfection. They're worried about whether the vaccine is going to have any. These are the kind of concerns for the future. You have asked a very broad question. I'll try to answer as well as I can, because we are all following this outbreak, or now we call it this pandemic. To my mind, the herd immunity, we say when 60 to 70% of population is immune, and the immunity will come from either getting infected or getting a vaccine. Now, if you talk about India, 130 crores, if you want 70% people to get infected, that means 100 crore get infected. Even if 1% die, you are talking about 1 crore people die. We can't afford this. So therefore, still we have not reached anywhere near herd immunity. So only solution is a good preventive measures and good therapeutic measures. As far as therapy is concerned, we have reached a very good stage where the mortality in Italy, which was 12%, in India it was 3 to 4%, we have reached 1.54%, and we expect that with the improvement in the quality of care, the mortality will come down. But the bottom line is preventive measures so the transmission gets slowed down. And second is vaccination. Now everybody knows about the vaccination. There are about 40 candidate vaccines which are being tried in various countries. And what we expect is that vaccine is not going to come before March, April of the next year for the public use. And if we talk about vaccine, it will take a very long time. So summarizing it in the interest of time, that if I become candid and pessimistic, you can call me, but I don't think as a person working in this area that corona is going to go away in a month or two. It is going to be with us for at least 6 to 9 months from now. Meaning thereby that we will have to continue our preventive measures, our care, whether you call it mask or social distancing. On a long-term basis, our method of living has to change. We are not to sit in the AC offices and have tea and Anna with our friends.
Yeah, I think we got try to the open gist of your your answer, windows. sir. Try to open our windows and take all the precautions as the government and the health authorities. बिल्कुल प्रिवेंटिव मेजर्स इस्तेमाल करने बहुत ज़रूरी हैं और इसके साथ ही जो गाइडलाइंस दी हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक बेहद जो गंभीरता से लोग जिस बात पर थोड़ा चिंता करते हैं उसकी वो ये है कि अलग अलग समय पे जो इसका प्रकार है वायरस का अलग अलग लोगों पे और डिफरेंट टाइम स्पेन में डिफरेंटली बिहेव करता है। तो बहुत ज़्यादा एसेस करना मुश्किल हो जाता है कि किसी एक आदमी पर पर्टिकुलर आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। डॉक्टर अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लॉकडाउन के समय में पॉल्यूशन लेवल बहुत कम हो गया था तो जितने भी एस्थमेटिक पेशेंट्स थे या इस तरह के डिजीज थे जो सांस से संबंधित थे वो थोड़ा सा सही होना शुरू हुए थे। लेकिन अब जिस तरह से गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं, पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ रहा है अलग अलग कारणों से, अब सर्दियां भी आ रही हैं, तो इसमें जो हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात कर रहे हैं और जो दवाइयों की बात कर रहे हैं इसको किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा कि किस मात्रा में, किस लेवल पर और किस पर्टिकुलर व्यक्ति को किस तरह से दी जानी चाहिए? रहा था कि आप मुझसे पोल्यूशन से रिलेटेड सवाल पूछ लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमने 6 महीनों में जब लॉकडाउन या 3 महीनों में जो शुरू के कंप्लीट लॉकडाउन था, ऐसे लेवल्स देखे थे जो शायद पोल्यूशन के हमने पिछले 25-30 साल में कभी नहीं देखे होंगे। लेकिन अब जब हमारी एक्टिविटी रिटर्न हो रही है टुवर्ड्स नॉर्मल तो या नियर नॉर्मल, तो वो पोल्यूशन लेवल फिर बढ़ रहे हैं। और एज ए पर्सन इन द फील्ड ऑफ चेस्ट, जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न आज की तारीख में है वो ये है कि अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी हमारे वातावरण में ऊपर एक नमी की लेयर आएगी और उससे जो धुआं वगैरह है जो अभी ऊपर के वातावरण में चला जाता है वो सब नीचे ट्रैप होना शुरू हो जाएगा। कुछ और चीजें हैं, क्रॉप बर्निंग है, वेस्ट बर्निंग है, गार्बेज बर्निंग है, जो सब चीजें, लकड़ी की बर्निंग है, जो सब चीजें हमारे यहाँ जाड़े के मौसम में ज्यादा होती हैं। तो हम सबका ये अंदेशा है कि जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो हमारे खासकर नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन मंथ्स कहलाते हैं, अब हम लोग उन पॉल्यूशन मंथ्स को अप्रोच कर रहे हैं और वो पॉल्यूशन, इस इन्फेक्शन को ये प्रूव हो चुका है इटली में, यूरोप में, कई देशों में कि अगर पॉल्यूशन लेवल्स हाई हैं तो केवल वायरस ज्यादा इंसिडेंस में स्ट्राइक ही नहीं करता, उसके डेथ रेट्स भी हायर होते हैं। तो हम लोगों को बहुत प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे कि हम धुएं का कम से कम प्रोडक्शन करें। जो धूल है, इन दो चीजों को हम किसी तरह से इनकी मात्रा कम करके हमें इनके पोल्यूशन लेवल्स को लो रखना पड़ेगा। उसके अलावा जैसा आपने एस्थमेटिक्स का कहा था या और कोई भी पेशेंट्स हैं जिनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, उनको अपनी दवाइयां नियमित रूप से लेनी पड़ेंगी। तो जो एस्थमेटिक्स दवाइयों पर हैं उन्हें अपने, चाहे वो स्टेरॉइड इनहेलर्स हो या कोई भी मेडिसिन हो, वो नियमित रूप से लेना पड़ेगा। लेकिन इन सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वालों को प्रिवेंशन का मेजर बहुत ही ज्यादा करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि we're running short of time, Dr. Arvind Kumar. So let's take a last caller. I think Dinesh is calling in from Meerut. Dinesh, आप अपना सवाल पूछिए। जी पूछिए दिनेश जी। दिनेश जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। दिनेश जी से हमारा संपर्क मार्क कट गया है। फेसबुक पर अगर कोई कॉलर आपके पास है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। Right, there are a lot of questions actually on Facebook, but many of them are concerned with Arogya Setu. People are concerned about whether they, because Arogya Setu tells them to test and they haven't got any symptoms and they worry whether they should go and test. Maybe Dr. Anupam Prakash, you can answer that question, because you have to wait for a certain period of time before you test, isn't it? I think it's about 3 or 4 days before the symptoms will show, or before you could before the infection can incubate. ठीक कह रहे हैं मिस्टर मार्क आप। अगर आपको आरोग्य सेतु ऐप में कहता है वो कि रेड दिखा रहा है और एडवाइस करता है कि टेस्ट करना है, तो अगर आपको कोई दिक्कत है, सिम्टम्स अगर आपको है, नजला, जुकाम, बुखार, खांसी, बलगम, कुछ भी आपको लगता है तो आप फौरन जाकर के टेस्ट कराएं, क्योंकि आप किसी एक मरीज से एक्सपोजर में थे जिसको कोरोना था। लेकिन अगर मान लीजिए आपको सिम्टम्स नहीं है तो फिर 4-5वें दिन तक इंतजार करें, और 5वें दिन एक्सपोजर के, जिस दिन आपका वो आरोग्य सेतु ऐप रेड हुआ था या जब आप संक्रमित मरीज के पास गए थे, संभावित मरीज के पास,
तो उसके 5वें दिन पे टेस्ट कराएं अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो। और इससे जो है कम से कम, क्योंकि हम मानते ये हैं कि 90% तक लोग जो है वो 4-5वें दिन तक उनको सिम्टम्स आ जाएंगे। तो अगर आप एसिम्प्टोमेटिक भी हैं तो आपको कम से कम पता चल जाएगा और आप अपने घर वालों को फिर इन्फेक्शन फैलाएंगे। ये एक जरूरी चीज है। बिल्कुल बेहद ज़रूरी है और आरोग्य सेतु ऐप का महत्व जो है वो किसी से छिपा नहीं है और काफ़ी सहायक ये साबित हो रही है। लेकिन अभी जो चिंता हो रही है वो ये हो रही है कि बदलते मौसम में जिस तरह से प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ेगा तो उससे किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, विशेषकर कोविड से संबंधित प्रिवेंटिव मेजर्स की हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो सभी को अपनाने चाहिए, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं वो भी, और जो लोग कोरोना संक्रमण से बचना चाहते हैं, इस तरह की बीमारियों से बचना चाहते हैं वो भी। प्रिवेंटिव मेजर्स 2 पार्ट में होंगे। एक, हम सबको मिल करके ये प्रयास करना पड़ेगा कि पॉल्यूशन लेवल को हम किसी भी तरह से न बढ़ने दें। व्हीकल्स, मैं स्वयं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूं और आप 2 लोगों से अपील करूंगा कि व्हीकल्स को जितना कम से कम इस्तेमाल कर सकें। कहीं भी जो छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी तक जो पब्लिक प्लेसेस में आग वगैरह जलती हैं उसको ना जलाएं। सड़कों पे धूल वगैरह और कंस्ट्रक्शन एरियाज में सबको कवर करके धुआं और धूल, ये जो दो धू हैं, इनको हम सब अगर 130 करोड़ लोग अथक प्रयास करके जानबूझ के कि इस बार हमें कम करना है, हमारे पास चॉइस नहीं है कोई और, तो जरूर वो पोल्यूशन लेवल्स उतने नहीं बढ़ेंगे जितने हर साल बढ़ते हैं। वो सबसे अहम प्रिवेंटिव मेजर्स होगा। और जब बढ़ेंगे भी तो उसके बाद फिर हम, एक तो देखिए मास्क इस समय सब लोग पहन रहे हैं तो ये मास्क हमें पॉल्यूशन एक्सपोजर में भी मदद करेगा, लेकिन ज्यादा अहम हो जाएगा कि लोगों में आजकल मैं देख रहा हूँ टेंडेंसी आ रही है कि जाके मिलना, पार्टियां करना, बर्थडे पार्टीज वगैरह, अनफॉर्चुनेटली ये चीजें शुरू हो रही हैं। अभी ये हम किसी कीमत पे नहीं कर सकते, हमें इन सब से दूर रहना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन, ये 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स हमें आने वाले महीनों में ज्यादा कड़ाई से इनका प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। एक तरफ पॉल्यूशन ना बढ़ने दें और दूसरा तरफ इन तीनों गोल्डन प्रिंसिपल्स को ज्यादा कड़ाई से प्रैक्टिस करें। यही 2 मैसेजेस हैं मेरे। So thanks very much, Dr. Arvind Kumar, Dr. G.C. Kilgnani and Dr. Anupam Prakash for helping our viewers understand the situation that they are living in, which is COVID-19, and clearing many of our doubts and giving us much more confidence about how to deal with our surroundings and to take our lives forward. बेहद महत्वपूर्ण बात मार्क कही कि जब तक नहीं है पर्टिकुलर दवाई तब तक कोई नहीं है ढिलाई, और लगातार जो कहा जा रहा है मास्क हमेशा पहनकर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और हाथ लगातार धोते रहिए और तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए, क्योंकि कोरोना को हम सबको मिलकर हराना है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।